Hello students, this is Archana, your science teacher. So welcome back to our science class, and today we will be going to cover two topics. They are types of wool and processing of wool. And the aim of today's topic is to understand the different types of wool and the various stages involved in the process of making wool from fleece. So students, before I start, I want to ask you a question that what are the three basic necessities a human needs for survival, and how do we protect ourselves from the cold in winter? So, human needs food, clothing and shelter to survive. These are our basic requirements. Clothing is specific to the climate we live in, and therefore for cold winters we need woolen clothes to keep us warm. सर्दियों में हम अपने आप को किससे बचाते हैं? वूलन कपड़े पहन के. So what do you mean by wool? Wool is a natural fiber which is obtained from hair, or you can say that fleece. Fleece का मतलब hair ही होता है. Fleece of an animal like sheep, goat, yaks, camel, llamas and alpacas. We use different types of wool. They are angora wool, camel hair, alpaca wool, cashmere, sheep wool, yak wool or other wools. Most animals which give us wool live in colder places and therefore have a thick coat of hair on their bodies to keep them warm in colder regions. Or you can say that colder climates. Now, can the hair of all the animals be used for making wool? क्या सभी animals के hair हम use करते हैं wool बनाने के लिए? No. Wool is mostly obtained from animals that live in the mountains and colder regions. हम जो animals mountains पे रहते हैं उन्हीं के जो hair है या उन्हीं के fleece जो है हम use करते हैं to make a wool. As they are thicker and warmer, therefore it is beneficial for making wool as it is longer and for a better quality than animals living in the plains. Different animals have different wools. अब हर एनिमल्स के एक जैसे फ्लीस तो नहीं होंगे ना, उनके हेयर जो अलग अलग होते हैं. डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, इट डिपेंड ऑन द रीजन द एनिमल्स कम फ्रॉम. अगर कोई एनिमल्स कोल्डर प्लेसेस में रह रहा है तो उसकी वूल कैसी होगी? वार्मर होगी. एनिमल्स लिविंग इन वार्मर प्लेसेस हैव हेयर एंड नॉट वूल. सम वूल लाइक पश्मीना इज मोर एक्सपेंसिव. एक पश्मीना आपने सुना होगा, बहुत महंगा होता है. पश्मीना शॉल जैसे आप देखते हो सर्दियों में बहुत महंगे मिलते हैं वो लोग. तो पश्मीना इज ए मोर एक्सपेंसिव देन अदर्स बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट. पश्मीना किससे मिलते हैं? अंगोरा गोट से. और अंगोरा गोट जो है वो बहुत कम अमाउंट में है या बहुत स्केर्स मिल रही है आजकल. सो एंड इट्स टेक्सचर इज ऑल्सो ऑफ अ हायर क्वालिटी. देर आर वेरी फ्यू अंगोरा गोट्स इन द वर्ल्ड एंड ईच गोट शेड्स ओनली 70 ग्राम ऑफ वूल. इसीलिए अंगोरा जो पश्मीना शॉल है वो बहुत महंगी होती है क्योंकि वो आसानी से मिलते नहीं है. Now we study about the different types of properties of wool. If you are talking about sheep wool, it is the most common wool, and yak wool is preferred in making theatrical wigs as it is long. Alpaca wool is silky and durable. Camel hair is used to make coats as it is very soft. Angora goat is, or you can say that Angora wool is soft using for making pashmina shawls as I told you. Cashmere is soft and expensive. It is also very scarce. तो ये भी बहुत कम मिलती है, इसीलिए ये भी बहुत महंगी होती है. अब हम वूल लेते कैसे हैं? हम लोग एनिमल्स के, या जैसे मान लो गोट है या याक है, शीप है, आप क्या करते हो? उसके जो फ्लीस होते हैं उसके हेयर्स को हम शेयर करते हैं. शेयर का मतलब होता है उसको रिमूव कर देना उसकी बॉडी से. अब क्वेश्चन आता है, इज इट एथिकल टू शेयर द वूल ऑफ शीप फॉर आवर बेनिफिट? क्या ये एथिकल है कि हम किसी भी शीप के हेयर हम निकालते हैं अपने यूज के लिए? सो यस इट इज, एज शेयरिंग द वूल इज जस्ट लाइक गिव द शीप अ शेप, और यू कैन से दैट अ हेयर कट. शेयरिंग करना मतलब ऐसा होता है कि आप किसी भी एनिमल को या किसी भी शेप को आप क्या कर रहे हो? उसको एक हेयर कट दे रहे हो. सो देयर इट डजंट हैव एनी पेनफुल प्रोसीजर. So the uppermost layer of the skin is dead cell and so there is no pain. जैसे आप अपने हेयर कट करते हो तो आपको दर्द होता है? नहीं होता. ऑटोमेटिकली आफ्टर कुछ दिनों के बाद क्या होता है? वो दोबारा से आपके सर पे आ जाते हैं बाल. ऐसे ही एनिमल्स के भी ऊपर भी होते हैं जिनके आप फ्लीस निकालते हो, वही फ्लीस जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद ग्रो हो जाते हैं उनकी बॉडी पे. सो इट इज अ वेरी एथिकल एक्ट, और यू कैन से दैट इट जस्ट लाइक अ गिविंग अ शेविंग टू अ शेप. अब क्वेश्चन उठता है, क्या नेचुरल वूल और जो आर्टिफिशियल वूल है क्या वो सेम अमाउंट में होते, सिमिलर होते हैं?
No, natural wool is more expensive than artificial wool, or you can say that artificial wool, for example, acrylic क्या हो गया, हम इसमें chemicals use करते हैं. Because of the expense involved in the raising of wool, yielding animals, and it is extensive process involves. Natural wool जो है वो बहुत ज्यादा expensive होता है as compared to the artificial wool, क्योंकि natural wool में आपको बहुत ज्यादा expense खर्च करना पड़ता है फॉर रेजिंग अ वूल यील्डिंग एनिमल्स. आपको एनिमल्स का ध्यान रखना पड़ता है, उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट देना पड़ता है. दूसरा, बहुत सारी जब आप शेयरिंग करते हो, उनको दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज देते हो, तो उसमें खर्चा बहुत ज्यादा है, इसी बहुत ज्यादा आता है एज कंपेयर टू द आर्टिफिशियल वूल, और यू कैन सी दैट एक्रिलिक. एक्रिलिक इज अ वूल विच इज वेरी चीप एंड केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्रिलिक. आप फैक्ट्रीज में केमिकल्स यूज करके आप जो आर्टिफिशियल वूल इजिली बना सकते हो. So now next topic is how we process a wool, or you can say how we get a wool. What is the steps we take to get a wool from a sheep, or you can say that wool from a goat. So open your content book and page number 25. You see that the first step to get a wool is shearing. So what do you mean by shearing? In this step, the fleece of the sheep or other animals like yak or camel is removed from its body along with a thin layer of skin. This is done using shears, and this process is called shearing. Shearing में हम क्या करते हैं, हम जो कैमल की या किसी भी एनिमल की बॉडी पे जो फ्लीस होते हैं उसको हम shears यानी कि कटर्स यूज करके उसकी बॉडी से हेयर को अलग करते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज स्कोरिंग. In this step, the sheared wool is washed to remove grease, dust and dirt. अब आपको पता है एनिमल्स हैं तो उनकी जो हेयर है उसके ऊपर डस्ट भी होगा, डर्ट भी होंगे, तो इसको हम रिमूव करते हैं उनको वॉश करके. So this step is known as scoring. First is shearing, then scoring. The third one is sorting. Now sorting में क्या करते हैं, the washed wool is then sent to be separated based on the different textures and grade. This process is called sorting. अब अलग अलग वूल है, मान लो अगर आप फ्लीस ले रहे हो तो बहुत सारी एनिमल्स के अलग अलग होंगे. मान लो गोट की बात कर रहे हो तो आप शिप की बात कर रहे हो, तो शिप में आप देखोगे कि किसी की कलर अलग होगा, किसी का टेक्सचर अलग होगा, तो उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर एंड ग्रेड्स हम उसको अलग करते हैं, या यू कैन सी दैट सॉर्ट करते हैं. आफ्टर सॉर्टिंग द सॉर्टेड वूल इज देन कार्डेड. अब व्हाट डू यू मीन बाय कार्डेड? कार्डिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ ब्रशिंग रॉ और वाश्ड फाइबर्स टू प्रिपेयर देम एज टेक्सटाइल. उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट के बाद हम उसको ब्रश करते हैं सो दैट वो जितनी भी रॉ फ्लीस है वो वॉश्ड हो जाए. वॉश होने के बाद एंटेंगल हो जाए एक दूसरे से. आफ्टर कार्डिंग द नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग. डाइंग में क्या करते हैं, द फाइबर्स आर देन डाइड डिफरेंट कलर्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइंग. डाइंग में हम उसमें कलर्स डालते हैं अकॉर्डिंग टू हमें किस तरीके का कलर चाहिए, उसके बेसिस पे हम उसमें कलर ऐड करते हैं, डाई करते हैं उसको. नेक्स्ट स्टेप इज कॉम्बिंग. इन दिस स्टेप द डाइड फाइबर्स आर देन स्ट्रेटन्ड एंड कॉम्ब्ड. अब उसको जब डाई करोगे दोबारा से वो क्या होंगे, उलझ जाएंगे, तो उसको सीधा करने के लिए सो दैट इट कैन बी स्ट्रेटेंड वी शुड डू कॉम्ब्ड, और दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉम्बिंग. The combed fibers are rolled into yarn and the yarn is spun and knitted into fabric. This is the last step. After combing, आप क्या करते हो, उसको रोल करते हो yarn में, bundles बनाते हो, और उसके बाद it will be sent to the factories to make a fabric. So students, this is all about your topic. Now this is the time to do your workbook. So the first question in your workbook is, take the pictures of the animals from which wool is obtained. So you can get wool from this B and D. And in the second question of this worksheet, you have to complete the table which is given below, the name of the wool, and you have to write the characteristics of these wools. So first of all, Angora wool. Angora wool, it is very soft and is used to make pashmina shawls. Kashmiri wool, it is very soft and it is very expensive. Yak wool, its hair is very long and it is used to make coats. Now the third question of this worksheet, you have to write that why doesn't the sheep get hurt during shearing? So shearing the wool is just like giving the sheep a shave or haircut, as it is therefore it is not a painful procedure. As I told you कि उनको कोई दर्द नहीं होता है, वो ऐसा लगता है जैसे आप अपना हेयर कट ले रहे हो, तो वो कुछ टाइम पीरियड के बाद
वो दोबारा से ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि जो अपर लेयर है उसकी स्किन की, एनिमल की स्किन की, इट इज वेरी डेड, इट इज अ डेड सेल एंड सो देर इज अ नो पेन. So students, this is all about your topic. Thank you and have a nice day.